This is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So हमने एक बहुत ही मेजर पार्ट दैट इज फोर ब्रेन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है. वी हैव कवर्ड सेरिब्रम, वी हैव कवर्ड ऑप्टिक लोब, प्लस वी हैव कवर्ड डायनसेफेलॉन. So if you have understood, so let us go to the next part of the brain, that is the midbrain. ठीक है, and soon I'll be uploading the hindbrain also. So आपका पूरा का पूरा brain will be done, and इसके बाद I will be uploading the MCQs related to this topic. ठीक है, जिसमें मैं forebrain, midbrain and hindbrain cover करूंगी. So you can see that whether you are thorough with your portion or not. Okay, so let's get started. So midbrain. So now let us understand where is this midbrain present. इसकी लोकेशन कहाँ है? देखो forebrain ऊपर है, ठीक है. It is not like this, ऐसा 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 नहीं है. It is forebrain, midbrain, hindbrain. Okay, ऊपर आपका पूरा cerebrum है, तो वो आपका forebrain बना रहा है. बीच में आपका midbrain है और नीचे पीछे के साइड में is your hindbrain. Okay. So midbrain location, it is present between diencephalon and pons varolii. See, ये जो diencephalon है ये हमारे फोर ब्रेन का लास्ट पार्ट है, करेक्ट. फोर ब्रेन का हमारा diencephalon इज द लास्ट पार्ट, ठीक है. तो ऑब्वियसली diencephalon के नीचे होगा, राइट. एंड बिटवीन pons varolii. Pons varolii इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन, ठीक है. हाइंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है pons varolii. सो ये जो मिड ब्रेन है आपका, it is present between your diencephalon and your pons varolii. See, this is the pons. Okay, can you see here? So this is the pons. So this part is your hindbrain. ये जो बीच का पार्ट है, ये region, this is called as your midbrain. और ऊपर जहां पर आपका thalamus है, diencephalon है, forebrain है, that is your forebrain. So this is the diagrammatic representation you should understand. कि देखो पहले forebrain है, फिर बीच में midbrain है और नीचे hindbrain है, ठीक है. So it consists of two parts, corpora quadrigemina and crura cerebri. तो midbrain के सिर्फ दो ही पार्ट्स है. पहले पार्ट का नाम क्या है? corpora quadrigemina and the second one is crura cerebri. ठीक है. So let us study about first corpora quadrigemina. So what is corpora quadrigemina? Four rounded elevations on dorsal surface of midbrain. तो midbrain को जब हम पीछे से देखेंगे तो चार elevations दिखेंगे. कितने elevations दिखेंगे? चार elevations दिखेंगे, जिसमें से दो होंगे आपके superior colliculi के और दो होंगे inferior colliculi के. So let us locate corpora quadrigemina over here. See, यहाँ पर can you see this side part? ये ऐसे चार, मतलब टोटल दो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, ये एक इस तरफ और एक दूसरा उस तरफ होगा. ओके, अगर आप डॉर्सली बनाओगे तो इट विल बी लाइक दिस. ऊपर सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और नीचे इंफीरियर कॉलिक्यूलाई. सो दो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, दो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई मेक्स योर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना. Okay, so this is superior colliculi, this is inferior colliculi. So let us see superior और inferior का function क्या है. It is involved in visual reflexes. Visual reflexes मतलब हम जब भी चीजें देखते हैं, like we passed out. Okay, जब हम जाते हैं और हमको कोई particular चीज properly देखनी होती है, तो हम अपना head turn करते हैं, correct? We move our head to the visual reflexes. Visual मतलब eyes से जो भी आप देखते हो, अगर आप अपना मुंडी, अगर हम अपनी मुंडी, अपना हेड टर्न करते हैं टू द विजुअल रिफ्लेक्स, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर सुपीरियर कॉलिक्यूलाई. तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई क्या करता है? मूवमेंट ऑफ हेड टू द विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है. तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू राइट डाउन मूवमेंट ऑफ हेड, ठीक है. बट कौन सा रिफ्लेक्स की तरफ? विजुअल रिफ्लेक्स. जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल बाय पास ऑन हो गया, आपको लगता है ना यार ये तो वो बंदा था, बट यू आर नॉट श्योर, तो उसके लिए आप क्या करोगे? यू विल टर्न योर हेड एंड सी कि यार वो वही बंदा था या नहीं, ठीक है. सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ योर सुपीरियर कॉलिक्यूलाई. अब आते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई पे. अगेन दीज आर टू बॉडीज, राइट. सो इट्स अ रिले सेंटर फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस that operate when it is necessary to move the head to hear sounds more distinctly. तो ये जो inferior colliculi है वो auditory ear reflexes पे काम करता है. जब भी हम अपनी मुंडी टर्न करेंगे कोई भी चीज प्रॉपरली सुनने के लिए, ओके, it is the movement of head to listen any auditory reflex carefully. So that is a function of your inferior colliculi. तो inferior colliculi and superior colliculi, I think
बहुत क्लियर है। सुपीरियर विजुअल रिफ्लेक्स में मूवमेंट ऑफ हेड है, इंफीरियर कॉलिकुलाई में मूवमेंट ऑफ हेड इज टुवर्ड्स योर ऑडिटरी, कान सुनने के लिए हम अपना मूवमेंट ऑफ हेड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ योर सुपीरियर कॉलिकुलाई। इंफीरियर कॉलिकुलाई दो है, ठीक है, दो सुपीरियर कॉलिकुलाई है, दो इंफीरियर कॉलिकुलाई है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आते हैं हम क्रूरा सेरिब्राई। क्रूरा सेरिब्राई क्या है? इट इज प्रेजेंट ऑन इंफीरियर सरफेस and are two thick fibrous tracts called cerebral peduncle और crura cerebri, ठीक है। ये देखो cerebral peduncle, can you see over here? So this is the cerebral peduncle of midbrain, जिसको हम crura cerebri भी बोलते हैं, ये रीजन, ठीक है। So ये कहाँ है? inferior surface, मतलब नीचे की तरफ है ये। two thick fibrous tracts, two thick fibrous tract मतलब ऐसे fibrous, ओके ऐसे दो थिक फाइब्रस ट्रैक होंगे, दो इसीलिए बिकॉज एक एसेंड करेगा, ऊपर तक लेकर जाएगा, और दूसरा होगा विच विल कम डाउन। ओके, सो फाइब्रस ट्रैक्स क्या है? दे कंटेन एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स, ठीक है। वो फाइब्रस ट्रैक्स क्या है? उनमें जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो एसेंडिंग है, और जो नीचे की तरफ आ रहा है दैट इज योर डिसेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल या फिर क्रूरा सेरिब्राई। So fibrous tract contains ascending and descending nerve fibers from RAS. What is RAS? बताया हुआ है पहले भी, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। कहाँ पर होता है ये लास्ट वीडियो में मैंने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन स्टेम, ठीक है। ऐसी हमारी ब्रेन स्टेम होती है, ठीक है। यहाँ पर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, ऐसे सारे नर्व्स आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। सो ये क्या कर रहा है? फाइबर्स, इट कंटेन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक फाइबर्स फ्रॉम RAS, मतलब ये RAS से, एंड इट कनेक्ट सेरिब्रम ऊपर के तरफ और मिड ब्रेन, ठीक है। सो ये आपके ऊपर सेरिब्रम को कनेक्ट करता है और यहाँ पर आपके मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है। सो दैट इज योर क्रूरा सेरिब्राई और सेरिब्रल पेडंकल। कैसे याद रखेंगे? इट इज नथिंग बट फाइब्रस ट्रैक्स। फाइब्रस ट्रैक्स इज ऑब्वियसली दो होगी, ए नर्व सिग्नल ऊपर और नीचे जाती है, राइट। सो असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, किधर है? RAS पे है। कहां से क्या कनेक्ट करिए? सेरिब्रम टू द मिड ब्रेन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दिस पार्ट। ये यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं कि यार उनको ये भी पढ़ना होता है, दैट इज रेड न्यूक्लियस। ओके, व्हेनेवर आई आस्क कि मिड ब्रेन क्या है तो क्या बोलेंगे? यार मिड ब्रेन आर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कॉर्पोरा क्वाड्रिसेप्टाइना, क्रूरा सेरिब्राई। नोबडी रिमेंबर्स अबाउट रेड न्यूक्लियस। ये जो जितने भी हमने न्यूक्लियसेस पढ़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQs, ठीक है। अब आते हैं हम रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस है तो बहुत ही क्लियर है कि इट इज अ मास ऑफ ग्रे मैटर विच इज प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर, करेक्ट। सो कहीं पर भी आपको ये वर्ड दिखेगा न्यूक्लियस तो वहां पर आपको मेनली यही लिखना है, मतलब आपको यही लिखना है कि वो मासेस ऑफ ग्रे मैटर है जो व्हाइट मैटर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये कहां पर प्रेजेंट है? रेड न्यूक्लियस मिड ब्रेन में है तो ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बीचों बीच पे है, ओके। इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ मिड ब्रेन, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मिड ब्रेन, तो ऐसे कहीं पर बीच में होगा, ओके। सो इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, सो ऐसे करके रेड न्यूक्लियस होता है, आई ड्रॉ योर, ओके। सो दिस इज द रेड न्यूक्लियस जो मिड ब्रेन के सेंटर में है। अब इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रेड न्यूक्लियस? plays an important role in controlling posture and muscle tone. Posture is very important because आप जिस तरीके से अपने आप posture maintain करते हो that speaks a lot about you, right? तो posture, sitting erect is very important. मसल टोन को कंट्रोल करता है, मॉडिफाई सम मोटर एक्टिविटीज, मोटर स्किल्स को एनहांस करता है, एंड मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका अपर आर्म है, ठीक है, दिस रीजन एंड ये शोल्डर, ये साइमल्टेनियसली मूव होते हैं, राइट, सी लाइक दिस। सो इन दोनों को कोऑर्डिनेट करता है, तो दो पार्ट्स को कोऑर्डिनेशन करना इज कॉल्ड एज मोटर कोऑर्डिनेशन, ओके। सो ये सारा फंक्शन है आपका रेड न्यूक्लियस का। इट इज रिलेटेड टू द मसल टोन, मसल पोस्चर, मोटर एक्टिविटीज, मोटर कोऑर्डिनेशन। तो हमेशा याद रखना रेड न्यूक्लियस को FM नहीं याद रखना, RM याद रखना, ओके। RM तो याद रहेगा M, ओके। M से मोटर एक्टिविटीज, M से मसल टोन, मसल पोस्चर, ओके, मोटर कोऑर्डिनेशन। सो अगर आप RM याद रखोगे तो आई डोंट
थिंक कि आप ये भूलोगे कि रेड न्यूक्लियस इज एसोसिएटेड विथ मसल। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स याद करना जरूरी है, बिकॉज कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विथ लॉट ऑफ नेम्स टू रिमेंबर। ठीक है, ओके, सो वंस अगेन लेट अस जस्ट गो थ्रू द डायग्राम। देखो यहाँ पर थैलेमस है, राइट, ये थैलेमस है, मैंने आपका थैलेमस बनाया हुआ है ऊपर की तरफ। सो यहाँ पे कहीं डायंसेफेलॉन होगा, ये जो दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो दिस सेक्शन इज योर मिड ब्रेन। ठीक है, ये देखो थैलेमस से नीचे क्या आ रहा है बेटा, ये क्या था हमने पढ़ा था, एमिगडाला, करेक्ट। सो दिस इज कमिंग डाउन एज एन एमिगडाला, ऊपर आपका सेरिब्रम होगा। सो फोर ब्रेन के नीचे इज योर मिड ब्रेन विच कंसिस्ट ऑफ 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। ये लैटरल ऐसा एक साइड का सेक्शन है, जब आप पीछे का सेक्शन देखोगे तो ऐसे दोनों दिखेंगे। ठीक है, ओके, तो सेरिब्रल पेडाउटल ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स है नीचे मेड्यूला है, तो इट इज बिटवीन योर फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। फोर ब्रेन का लास्ट पार्ट इज योर डाइनसेफेलॉन, इसीलिए इट इज बिटवीन योर डाइनसेफेलॉन एंड पॉन्स वरोली ऑफ योर हाइंड ब्रेन। I hope you are clear with the midbrain, because midbrain is a very small part, ज्यादा बड़ा नहीं है। कॉर्पोरा, क्वाड्रिजमाइना, क्रूरा, सेरिब्रा एंड रेड न्यूक्लियस, ये 3 चीजें याद रखो, दैट इज मोर देन इनफ। बट रेड न्यूक्लियस का जो फंक्शन है वो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी इमेजेस होंगे आई विल बी अटैचिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो, इफ यू फाइंड द वीडियो टू बी हेल्पफुल, तो प्लीज लाइक द video, try to share as much as you can. And yes, there is a Telegram group on my channel's name, that is NEET Biology Unplugged, where I am uploading all the important one-liners, 2-mark question, brief question, हर एक chapter का related. Plus I will be uploading, मतलब I have already uploaded few MCQs also, few exercise also. Soon from January I will be uploading, the previous year NEET questions, previous year AIPMT questions, सारी चीजें मैं अपलोड करने वाली हूँ. So if you want to benefit from it, then please join my Telegram group, which is on my channel's name only, and I will be giving you the link below. Okay. Plus there is a group called as Biobomb by Dr. Sana Khan. If you want to join into that, please message me on the chat box. ठीक है, comment box पे आप लिखो अगर आपको उस पे join होना है तो, because it's a chat group where you can ask me any doubts. ओके, अगर आपको कोई भी डाउट्स है पूरे बायोलॉजी से रिलेटेड, वो 11th हो या 12th हो, यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर यू एज सून एज आई कैन. ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड, subscribe to my channel and try to share as much as you can. Bye.